آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا، نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا۔ حکومت کا کام صرف یہ ہے کہ آج ہمیں کس کو بند کرنا ہے، کل میں اور آپ اسی جیل میں ہوں گے۔ اگر اس ملک نے چلنا ہے تو اس سائر اور اس سائر کو مل کے کام کرنا پڑے۔ آئین کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ سمیت کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ جب تک ہاؤس فنکشن نہیں ہوگا، ملک فنکشن نہیں ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کیا وزیر اعلیٰ کا کام یہ ہے کہ جلسے میں آ کر گالی دے، اور وفاقی حکومت کا کام یہ ہو کہ آج کسی کو بند کرنا ہے؟ آج سیاسی ماحول اس مقام پر ہے کہ کوئی کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ پی ٹی آئی ایوان نہ چھوڑے، کمیٹیاں نہ چھوڑیں، آئیں بیٹھے بات کریں۔ اگر ہاتھ نہیں ملانا اور ایسے ہی چلنا ہے تو ٹھیک ہے۔ بلوچستان کے سینئر سیاستدان نے اسمبلی سے استعفیٰ دیا، جس پر بہت افسوس ہوا۔ بلاول بھٹو نے مہنگائی کی شرح کم ہونے پر حکومت کی تعریف کر دی، کہا اپوزیشن کو اعتراف کرنا چاہیے کہ مہنگائی کی شرح کم ہو رہی ہے۔ انہیں تجویز دینی چاہیے کہ مہنگائی مزید کم کیسے ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن بلا وجہ تنقید کر کے IMF جیسے اداروں کے ساتھ مذاکرات کو نقصان نہ پہنچائے۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں آج دوسرے روز بھی احتجاج۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا جب تک گرفتاریوں کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی مطمئن نہیں کیا جاتا۔ 9-10 اراکین کے علاوہ پی ٹی آئی کے اراکین اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ ہمارا استحقاق مجروح ہوا ہے، جلسہ تو بہانا تھا، ان کا مقصد ہمارے لوگوں کو دبانا تھا۔ ہم جھکنے والے نہیں، مذاکرات کی پیشکش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اسپیکر سے ملاقات کے بعد بتایا گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے۔ ہمارے اراکین اسمبلی کل اجلاس میں موجود ہوں گے، استعفیٰ نہیں دے رہے، ان کے لیے پارلیمنٹ خالی نہیں چھوڑیں گے۔ خواجہ آصف کا نقاب پوشوں کے پارلیمنٹ آنے کا اعتراف، کہا اس میں کوئی شک نہیں نقاب پوش لوگوں کے پارلیمنٹ آنے سے استحقاق مجروح ہوا، ہمیں نشانہ بنایا گیا، لیکن ایک شخص اگر آ کر گالی دے کر فیڈریشن کو چیلنج کر کے جاتا ہے کوئی اس کی بھی مذمت کرے۔ پارلیمنٹ میں ریڈ لائن کراس ہوئی تو پی ٹی آئی کے جلسے میں بھی کئی لائنز کراس ہوئیں۔ علی امین گنڈا پور کے جلسے میں گفتگو خودکشی کے مترادف ہے۔ سیاسی اختلافات جمہوریت کا حسن ہے، اختلافات ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا سیاست ضرور کریں لیکن ریڈ لائن کراس نہ کریں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ویڈیو ثبوت موجود ہیں، ارکان اسمبلی کو پارلیمنٹ سے نہیں اٹھایا گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی، کہا ہماری قیادت ساتھ بیٹھنے یا نہ بیٹھنے، کیا ہم اراکین پارلیمنٹ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ ایک دوسرے پر تنقید ضرور کریں لیکن ایک دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں۔ پارلیمنٹ کا استحقاق مجروح کیا گیا، واقعے کی تہ تک جاؤں گا۔ پارلیمانی امور کی انجام دہی کے لیے حکومت اور اپوزیشن اراکین پر مشتمل 16 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اسپیکر نے غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف اور دیگر 4 سیکورٹی اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ لائٹ بند کرنے کے الزام میں سی ڈی اے کے 5 اہلکار بھی معطل، 5 کو پارلیمنٹ ہاؤس سے واپس بھیج دیا گیا۔ میں یہ بات کی تکراری کے لیے کہنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، جو آپ نے اقدامات کی وہ توڑے ہیں، یہ اس سے ہم مطمئن نہیں ہونے۔ اسد کیسر نے اسپیکر قومی اسمبلی کے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ سے ارکان کی گرفتاری پر جمعے کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان، کہا اس اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں، یہ 17 ارکان پر قانون سازی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے MNAs کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے اسپیکر نے پولیس کو گرفتاریوں کی اجازت کیوں دی، اب کہہ رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ کراؤں گا، پولیس اہلکاروں کی بجائے ذمہ داروں پر FIR درج کی جائے۔ صحافی کے سوال پر کہا علی امین گنڈا پور میٹنگ میں تھے، چیمبر کے باعث رابطہ نہیں ہوا۔ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن کی کوئی جماعت آئین سے متصادم قانون سازی کی حمایت نہیں کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی سے رات کی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کے اقدامات عوام کے مفاد سے متصادم ہیں، ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینا ہے۔ یہ UI اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔
मुलाकात में मोहम्मद अली दुरानी ने कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख के दुरुस्त सम्त में खड़े हैं। आप हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन नहीं हैं। पीटीआई मिन्नतें करे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। जब एस्टेब्लिशमेंट का हमारा काम ही नहीं है आपसे बात करने का, फिर बोलते जी आप किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होती। ये डर नहीं है, जब आप चॉइस नहीं तो आप कहीं ना कहीं फेस सेविंग तो करनी है उन्होंने ना। सिंध के वज़ीर इत्तलात शजील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई मिन्नत कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जवाब मिला, आपसे बात करने का काम ही नहीं है। फिर बोलते हैं अब किसी सूरत इनसे बात नहीं होगी। जब चॉइस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं फेस सेविंग करनी है। दुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आंखें खुल जाएं। वो इसके हकदार नहीं कि इस तरह के लोग उन पर सवार होकर हुकूमत करें। अंदर आने के रास्ते भी बंद, बाहर जाने के रास्ते भी बंद, यानी हुकूमत खुद मैसूर होकर रह गई। ये कौन सी जमहूरियत है? पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में जमहूरियत नहीं। एक एसएचओ की मार है सारे कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेट के मेंबरान। हम सब भी जो है बैठे एक एसएचओ की मार है। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, तमाम अरकान असम्बली एक एसएचओ की मार है। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एक जलसे की वजह से हुकूमत ने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। जलसे की इजाजत देकर रास्ते बंद करना कौन सी जमहूरियत है? पीटीआई के जलसे में अवाम की कोई बात नहीं हुई। हुकूमत जिस तरफ जा रही है वो तबाही और बिगाड़ का रास्ता है। आइन और जमहूरी रवायात से मुतसादिम कानून ना बनाएं। हुकूमत अब सुप्रीम कोर्ट से तसादुम की राह पर चल पड़ी है। आईनी तरमीम में जो बातें हो रही हैं वो खौफनाक हैं। चीफ जस्टिस तौसीह से इनकार करके तारीख में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब, असद कैसर और फैसल अमीन की 7 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। विफाकी इदारों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। तीनों रहनुमाओं को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पीटीआई के गिरफ्तार अरकान असम्बली ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने शेख वकास, जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त शुएब शाहीन को हफ्से बेजा में रखने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। समाअत कल होगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की थाना नून में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन थाना संजानी के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एमआई, आईबी, एफआईए और दीगर इदारों के डीजीज को पार्टी बना दिया। आईजी इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने आईजी से मकालमे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थी, आपने पता लगाना था। क्या पता चला? आईजी ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार एसपी, तफ्तीशी और एसएचओ गए, लेकिन उनकी फैजान से मुलाकात नहीं करवाई गई। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज डेरा गाजी खान के करीब 10 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। ज़लज़ला टोबा टेक सिंह, मियांवाली, कालाबाग, भक्कर, सरगोदा, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, उकाड़ा, खानेवाल, स्वात, मैंगोरा, लकी मरवत, डीआई खान और दीगर करीबी शहरों में महसूस किया गया। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का जोरदार झटका। फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.74 महंगी। नेपरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 43 अरब 23 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया। इजाफा अप्रैल तक जून से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। वसूली सितंबर से नवंबर तक के बिलों में की जाएगी। कैपेसिटी चार्जेस की बात करके असल मसले से हटा दिया गया। असल मसला ईंधन की कीमत है। सस्ती बिजली देने के लिए काम करना होगा। आईपीपीज के तहत सहूलत देना होगी। वफाकी हुकूमत को तजावीज देने जा रहे हैं। चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के सीईओ शहरियार चिश्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमें बिजली की तलब बढ़ाना होगी। तलब बढ़ने से बिजली की कीमत कम होगी। कादिरपुर गैस फील्ड से पैदावार तेजी से घट रही है। दूसरी फील्ड से गैस दी जाए। गवर्नर हाउस कराची में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की उलमा कराम से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलिशान स्टेज बनाकर 14 अगस्त और 6 सितंबर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे। गवर्नर हाउस की महफिल में सबको दावत है। गवर्नर हाउस में चिरागा होगा।
बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की 76वीं बरसी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायद आजम एक ऐसी रियासत के ख्वाहां थे जहां तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदान के तौर पर लिया जाएगा। शायद हम आपसे शर्मिंदा इसलिए कि इस मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात रुनुमा होते हैं। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। जाती रंजिशों को पीछे रख के मुल्क के अंदर सूरत हाल है, उसका मुकाबला करें। 9 मई जैसे वाकयात पर शर्मिंदा हैं, कुछ लोग दुश्मन का बयानिया बेच रहे हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगाह जाने देंगे, ना दुश्मन कुव्वतों के बयानी को मजबूत होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, आज अहद करें, सब मुत्तहद होकर मुल्क की मौजूदा सूरत हाल का मुकाबला करेंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों को नीस्तो नाबूद करेंगे। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरहूम पेंशनर की शरीके हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज की कबल वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी। खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का 5वां केस रिपोर्ट। वजीर सेहत कासिम शाह का कहना है, 33 साल शख्स 7 सितंबर को सऊदी अरब से पाकिस्तान आया, पेशावर के होटल में क्याम किया, मरीज को लोअर दीन में घर पर क्वारंटीना कर दिया गया। पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला आवरों को ऐसा जवाब दें कि वो दोबारा हमला न कर सकें। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वजीर आला ने ईद मिलादुन्नबी पर सिक्योरिटी के फूड प्रूफ इंतजाम की भी हिदायत की। गाड़ी ओवरटेक क्यों की? मुल्तान के बोसन रोड पर कार ड्राइवर आपस से बाहर, दूसरी कार में बैठे शख्स को तशद्दुद करके जान ले ली। मजहर नामी शख्स सीने पर मुक्का लगने से दम तोड़ गया। ट्रैफिक वार्डन ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सानेहाय बल्दिया टाउन को 12 बरस बीत गए, लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा। आग में झुलस कर 260 अफराद जाम बहक, 50 से ज्यादा जख्मी हुए थे। बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले मुल्जिमान की अपीलें सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। 9/11 को 23 साल मुकम्मल। 2001 में आज के दिन अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की वो कार्रवाई हुई जिसने दुनिया का मंजरनामा ही बदल कर रख दिया। खुदकुश हमला आवरों ने 4 मुसाफिर तैयार इकपा करके न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में अहम मकामात से टकराए। 2 तैयारों से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया। तीसरा तैयारा वाशिंगटन में पेंटागन से टकराया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही से 3000 के करीब लोग मारे गए। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। उनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्सों से बचाया। मैं छोटे कारोबारी अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। प्यूटिन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। कहा, कैमला मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी। उनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अमरीका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहता हूँ।
लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूं। कैमिला सदर बनी तो इसराइल गया। स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की वजीर आजम हाउस आमद। नॉर्वे कप में चौथी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी वजीर आजम से मिले। वजीर आजम ने कहा, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है। आप सब खिलाड़ी पाकिस्तान के दरख्शां सितारे हैं। हुकूमत पूरी तरह से आपकी मावनत करेगी। बहुत जल्द पाकिस्तान में फुटबॉल की तरक्की के लिए एक जामे प्लान के निफाज का आगाज करेंगे। खिलाड़ियों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस वनडे कप का मेला कल से फैसलाबाद में सजेगा। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रूनुमाई। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। वनडे टूर्नामेंट होने जा रहा है। यहाँ पे 4 डे क्रिकेट होनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो उनके इंटरनेशनल टूर्स हैं या जो इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान आ रही हैं टिल 2027, वो सारे फाइनलाइज हो चुके हुए हैं। तो हम भी अब सारे बैठेंगे। लेट्स सपोज अगर वनडे सीरीज खेलने पर टीम पाकिस्तान आ रही है तो उस दौरान वनडे टूर्नामेंट चल रहा होगा। इंटरनेशनल स्टेज के लिए टैलेंट तैयार करना चाहते हैं। स्टालियंस के मेंटोर शोएब मलिक की एयरवन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जिस किस्म की सीरीज चल रही हो डोमेस्टिक सतह पर उसी फॉर्मेट का टूर्नामेंट होना चाहिए। क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। हम मेंटोर्स 3 साल के लिए आए हैं। प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप्स लगाना होंगे। खिलाड़ियों को समझाना होगा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को पहली कामयाबी मिल गई। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दागकर बरतरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बरतरी दुगनी कर दी। इवेंट में पाकिस्तान कल चीन से मद्दे मुकाबिल होगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप का शानदार वेलकम। मेगा इवेंट का काउंटडाउन। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर दिलफरेब लाइट शो। बिल्डिंग पर वर्ल्ड कप की थीम दिखाई गई। फैंस ने भी खूब तस्वीरें बनवाई। मेगा इवेंट 3 अक्टूबर से शारजा और दुबई में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कम कीमत टिकटों का भी ऐलान। कम से कम कीमत 5 दिरहम होगी। 18 साल से कम उम्र शायकीन के लिए एंट्री फ्री होगी।